શેજ છેલ રે છુગાડો, હે શેજ છેલ રે છુગાડો, એ તો લાગે કેવો રૂપાળો, મનડા કેરો મોર મારા ચિતડાનો ચોર. ચોથી દીકરીને ત્યાં ગયો અને પૂછ્યું થોડા દિવસ રહીને કેમ કે ખૂબ સુશીલ છે, મોટાઓનું સન્માન કરે છે, બાળકોનો સ્નેહ કરે છે, પતિની સેવા કરે છે. ત્યારે પિતા સમજી ગયો કે મારી દીકરી આ જ છે. એટલે ગુસાઈજી કહે વૈષ્ણવ તો એના લક્ષણથી ઓળખાઈ જાય. એના જે કર્મો છે, એના જે લક્ષણો છે, એનાથી જ વૈષ્ણવનો પરિચય થઈ જાય. એમાં એની વ્યાખ્યા કરવાની જરૂર જ નથી. હવે ઘરે જઈને ઓળખી લેવાનું કે કોના લક્ષણ વધારે છે. બધા કારણ કે જે લક્ષણ હોય એ પ્રમાણે ગુસાઈજી વાર્તા કહે છે કુંભનદાસ કે વૈષ્ણવ તો એના લક્ષણથી ઓળખાય. એમ કુંભનદાસજીની અનેકવિધ પ્રકારની લીલાઓના વર્ણન છે. ગુસાઈજી કુંભનદાસ સાથે તો શ્રીનાથજી બાવાનો અતિ સ્નેહ છે, અતિ સ્નેહ. રોજ બપોર થાય એટલે પધારે. કુંભનદાસ ને ત્યાં આરોગે અને કુંભનદાસ એવો સ્નેહ ઠાકોરજીને કરે. અનેકવિધ પ્રકારની લીલાઓના વર્ણન અહીંયા કર્યા છે. કુંભનદાસ પર એવી કૃપા કરી મહાપ્રભુજી શ્રીનાથજી બાવાને પાટે પધરાવીને પધાર્યા છે પૃથ્વી પરિક્રમા કરવા માટે. પૃથ્વી પરિક્રમા કરતા કરતા અનેક દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર કરતા કરતા ભાગવતજીના અર્થો કરતા કરતા 16 ગ્રંથોની રચના કરતા સંક્ષિપ્તમાં વલ્લભ ચરિત્રનું દર્શન કરીએ. કારણ કે મહાપ્રભુજીના ચરિત્ર વગર પણ શ્રીનાથ ચરિત્ર અધૂરું છે. અરે કૃપા કરી છે અને મહાપ્રભુજી ગંગા સાગર પધાર્યા અને ત્યાં ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી, હે શ્રી વલ્લભ, આપનો વિરહ નિત્ય લીલામાં સહન થતો નથી, હવે આપ ફરી લીલામાં પધારો. પણ હજી દૈવી જીવોને બ્રહ્મ સંબંધ આપવાના બાકી હતા, ભાગવતજીની ટીકા કરવાની બાકી. તૃતીય સ્કંદ સુધી જ મહાપ્રભુજી પહોંચ્યા હતા અને જ્યાં આજ્ઞા થઈ એટલે સીધા દશમ સ્કંદની ટીકા કરવા લાગ્યા. એટલે સુબોધનીજી પૂરા ભાગવતજી ઉપર નથી. તૃતીય સ્કંદ જ્યારે આજ્ઞા થઈ કે લીલામાં પધારો અને મહાપ્રભુજીને થયું કે પ્રભુ આજ્ઞા છે અને મારે તો દશમ સ્કંદની કૃષ્ણ ચરિત્રના અર્થોને પ્રગટ કરવા છે. 7 પ્રકારે મહાપ્રભુજી અર્થો કર્યા છે. એટલે ભાગવતાર્થ પ્રકરણ અને સુબોધનીજી આ બંનેને જોઈએ ત્યારે ભાગવતજી પરની પૂર્ણ ટીકા. શાસ્ત્રે સ્કંદે પ્રકરણે અધ્યાયે વાક્ય પદેક્ષરે एकार्थ सप्तदा जानन अविरोधे न मुच्यते. यूं 7 प्रकार से महाप्रभु जी ने अर्थ किए भागवत जी के. ગંગા સાગર સંગમમાં જ્યારે આજ્ઞા થઈ ન માની પછી મહાપ્રભુજી પૃથ્વી પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા વ્રજમાં પધાર્યા. મધુવનમાં મહાપ્રભુજી હતા ત્યારે ફરી આજ્ઞા થઈ, શ્રી વલ્લભ ફરી લીલામાં પધારો, હવે આપનો વિરહ મને સહન થતો નથી, આપ લીલામાં પધારો. બીજી આજ્ઞાએ મહાપ્રભુજીએ ન માની. હજી દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર ભાગ જેના માટે હું ભૂતલ પર આવ્યો છું એ કાર્ય હજી અધૂરું છે. પણ મહાપ્રભુજીના મનમાં અતિ ગ્લાનિ થઈ, ખેદ થયો કે मैंने 2 बेर भगवत आज्ञा को उल्लंघन कियो. આ તો દાસ ધર્મની વિપરીત છે, આ સેવક ધર્મ નથી. અને મનમાં એવું ખેદ પ્રગટ થયો અને મહાપ્રભુજીએ પોતાના અંતઃકરણને ઉપદેશ આપતા અંતઃકરણ પ્રબોધ નામનો ગ્રંથ લખ્યો, જે 16 ગ્રંથમાંનો એક ગ્રંથ છે. અંતઃકરણ મદવાક્યમ સાવધાનતયા શૃણુ, કૃષ્ણાત પરમ નાસ્તિ દૈવમ વસ્તુતો દોષ વર્જિતમ. હે અંતઃકરણ, સાવધાનીથી સાંભળ, કૃષ્ણ જેવો અલૌકિક દૈવી તત્વ પૂરા જગતમાં કોઈ નથી. એ પરમ અલૌકિક તત્વ છે. કૃષ્ણાત પરમ નાસ્તિ દૈવમ વસ્તુ તો દોષ વર્જિતમ. ચાંડાલ ચેદરાજ પત્ની જ્ઞાતા રાજ્ઞા ચ માનિતા કદાચિત અપમાને વા મૂલતક્કાક્ષતિર ભવે. સુંદર વાત કરતા મહાપ્રભુજી પોતાના અંતઃકરણને પ્રબોધ કરી રહ્યા છે અને પોતાની જાતને સમજાવતા કહે મહાપ્રભુજી કે જેમ ચાંડાલી ચેદરાજ, કોઈ ચાંડાલી સ્ત્રી હોય, વનમાંથી જતી હતી અને એક રાજાની સવારી નીકળી
રાજાને ગમી ગઈ સ્ત્રી, લઈને આવ્યા મહેલમાં, વિવાહ કર્યા, રાણી બનાવી, પોતાની માનીતી રાણી બની. પણ થોડો સમય થયો તો રાજાની અમાનીતી થઈ ગઈ. ત્યારે મહાપ્રભુજી કહે કે રાજાની અમાનીતી થઈ, પણ એમાં એના સ્ત્રીનું ગયું શું? સાવ ચાંડાલી હતી. હવે લોકો રાણી તો કહે છે. એમ હે જીવ, આપણે પણ હજારો દોષોથી ભરેલા એક જીવાત્મા હતા, લોકો આપણને વૈષ્ણવ કહે છે. એ આપણું બહુ મોટું સન્માન. કદાચ બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી હજી સર્વોત્તમ નથી થયા, ઉત્તમમાં ઉત્તમ આપણે નથી થઈ શક્યા, છતાંય ગળામાં કંઠી જોઈ લોકો જય શ્રી કૃષ્ણ કરે છે ને, એ આપણું સન્માન છે. એ આપણું બહુ મોટું બહુમાન છે. તમને કોઈ એક બિઝનેસમેન તરીકે મળે, તમને કોઈ એક સગા તરીકે મળે, તમને કોઈ એક મિત્ર તરીકે મળે, એના કરતા કોઈ તમને વૈષ્ણવ તરીકે મળે ને, એની મહત્તા છે. જો તમને જો હું પ્રશ્ન કરું કે તમે દુનિયામાં ન હો ત્યારે તમને લોકો કઈ રીતે ઓળખે એમ ઈચ્છો છો? એક બિઝનેસમેન તરીકે, એક વેપારી તરીકે, એક સંબંધી તરીકે, એક ધનિક વ્યક્તિ તરીકે, એક પરિશ્રમ કરનાર વ્યક્તિ તરીકે, આમ ઘણી બધી વ્યાખ્યા થઈ શકે કે એક વૈષ્ણવ તરીકે તમારી ઓળખાણ થાય. શ્રેષ્ઠતમ પરિચય ઘણા શેઠ પુરુષોત્તમ દાસ છે વાર્તા સાહિત્યમાં, પણ આપણે એને શેઠ તરીકે નથી ઓળખતા, આપણે એમને એક વૈષ્ણવ તરીકે યાદ કરીએ. વૈષ્ણવની હોશિયારી અને ચતુરાઈ એ જ છે, ભગવાન સંસાર આપે અને વૈષ્ણવ એવો કુશળ છે કે એ જ સંસારને સાધન બનાવી એ કૃષ્ણ સુધી પહોંચી જાય છે, એ ભગવાન સુધી પહોંચી જાય છે. આને છોડવાની વાત નથી. તમે આ સંસારનો ઉપયોગ કરી ભગવાન સુધી પહોંચવાની હોશિયારી ધરાવો છો. આ બધા જ સાધન થઈ શકે છે, પણ એને જ સાધ્ય માની લેશો તો પછી ફસાઈ જશો. ભગવાને જે આપ્યું છે એ ભગવાન સુધી પહોંચવાનું સાધન છે. બસ આ યાદ રાખો ને, પછી ક્યારે પણ સંસારમાં રહીને સંસારી નહીં બનો. આ જે કાંઈ પણ મને મળ્યું છે, સગા સંબંધી, વ્યક્તિ, ધન, મકાન, જે કાંઈ છે એ બધી તકો છે જે ભગવાને એના સુધી પહોંચવાની મને આપી છે. હું કઈ રીતે એનો ઉપયોગ કરી પ્રભુની નિકટતાને પામી શકું, એ કુશળતા વૈષ્ણવમાં હોવી જોઈએ. અહીંયા મહાપ્રભુજી અનેક પ્રકારથી અંતઃકરણ પ્રબોધમાં તો પ્રોઢાપી દુહિતા યદવત સ્નેહાન ન પ્રેષ્યતે વર તથા દેહે ન કર્તવ્યમ વરસ્તુષ્યતિ નાન્યથા. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે અંતઃકરણ પ્રબોધમાં કે જેમ કોઈ માને એની દીકરી બહુ વાલી હોય, અને એટલી બધી વાલી છે કે એ જતી રહેશે એ બીકે એના લગ્ન જ કરાવતી નથી. ગામવાળાએ જ્યારે દીકરી મોટી થઈ ગઈ એટલે બધા કહેવા લાગ્યા કે અરે ઇતની બડી બેટી હો ગઈ, અબ તો શાદી કરાઓ. અબ સબ કહેને લગે શરમ લગી ઇनको. એટલે માને સંકોચ થયો એટલે નક્કી કર્યું, પરણાવી, પણ દીકરી જતી ન રહે એટલે એનું આણું કરાવતી નથી, પોતાના ઘરમાં જ રાખે છે, પતિને ત્યાં જવા નથી દેતી. ત્યારે મહાપ્રભુજી કહે છે એ દીકરીનું અહિત કરે છે અને એના પતિને નારાજ કરે છે. તો હે વૈષ્ણવો, તમે તમારા દેહરૂપી દીકરી સાથે આવું ન કરતા. બ્રહ્મ સંબંધ કરાવીને પરણાવ્યા ખરા ઠાકોરજી જોડે, પણ હવે સેવામાં પરણાવીને વળાવશો નહીં તો આ દેહનું અહિત કરો છો અને પ્રભુને નારાજ કરો છો. તો તમે આ દેહરૂપી દીકરી સાથે આવું ન કરતા. એનું સાફલ્ય એમાં છે, એ પતિની સેવામાં જતી રહે. આ દેહનું પણ સાર્થકતા અને સાફલ્યતા એમાં છે કે જેના માટે મળ્યું છે એના ઉપયોગમાં આવી લાય, જેણે આપ્યું છે એના ઉપયોગમાં આવે. અદ્ભુત ગ્રંથ અંતઃકરણ પ્રબોધ છે. મહાપ્રભુજી સ્વયંના અંતઃકરણને નિમિત્ત બનાવીને આ ગ્રંથની રચના કરે છે. અડેલમાં બિરાજ્યા છે મહાપ્રભુજી, અને ત્રીજી ભગવદ આજ્ઞા થઈ, દેહ દેશ પરિત્યાગ. 40 દિવસ તે દંડી સંન્યાસ મહાપ્રભુજી સ્વીકાર્યો છે. એક કોપીને ધારણ કરી, મૌન વ્રત ધારણ કરી, ગંગાજીના હનુમાન ઘાટ ઉપર મહાપ્રભુજી બિરાજ્યા છે. પરમ વિપ્રયોગાવસ્થામાં 40 દિવસ થઈ ગયા છે, મૌન વ્રત છે. રથયાત્રાનો દિવસ આવ્યો.
બધાને ખબર પડી કે આજે મહાપ્રભુજી નિત્ય લીલામાં પધારવાના છે અને ગામ ગામથી હજારો વૈષ્ણવો ગંગાજીના ઘાટ ઉપર ઉભરાયા છે. હજારો વૈષ્ણવો ગંગાજીના કિનારે ભેગા થયા છે. મહાપ્રભુજીના લીલા ગમનના આ દ્રશ્યોને, આ દર્શનને કરવા માટે શાંત ચિત્તે મહાપ્રભુજી વિરાજેલા છે ગંગાજીની પરમ પાવન રેતમાં, ઘાટમાં. અને આ નાની વયના બંને લાલજી, ગોપીનાથજી ને ગુસાઈજી ત્યાં પધાર્યા. હાથ જોડીને વિનંતી કરી કે અમારા માટે શું આજ્ઞા છે. મૌન વ્રત છે મહાપ્રભુજી. એટલે પોતાની અંગુલીથી ગંગાજીની રેત ઉપર શિક્ષા શ્લોકી નામનો ગ્રંથ મહાપ્રભુજી રચ્યો. યદા બહિર્મુખાયુયમ ભવિષ્યત કથંચન તદા કાલ પ્રવાહસ્તા દેહ चित्तादयोप्युत. मानो समग्र सृष्टि को आज्ञा कर रहे हैं महाप्रभु जी कि जो तुम बहिर्मुख हुए तो काल के प्रवाह में बह जाओ. सर्वथा भक्षयिष्यन्ति, ये काल आपका ग्रास कर जाएगा. बचने का एक ही उपाय है और वो है प्रभु की सन्मुखता. 4 कारण से बहिर्मुखता आती है, यूं आचार्यों ने बताया. असद संग, असद आलाप, अन्याश्रय और असमर्पित. ये 4 कारण से बहिर्मुखता आती. सन्मुख रहो, काल भक्षण कर जाएगा. भय लग गया, अरे कलिकाल में कैसे अपने आप को बचाएं. पर उसी क्षण श्रीनाथ जी बाबा साक्षात वहां प्रकट हुए. जैसे ब्रह्म संबंध के समय श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षर स उच्यते. तब वहां ठाकुर जी ने कहा है ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति ही दोषा पंचविधा स्मृता. ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम, सभी जीवों के दोषों की निवृत्ति हो जाए, जो भगवत वचन है. वैसे ही श्रीनाथ जी यहां प्रकट हुए और स्वयं ग्रंथ को पूरा करते हुए कहा मयि चेदस्ति विश्वास श्री गोपी जन वल्लभे तदा कृतार्था यूयम ही सोचनीयम न करहि चित. जो तुमको मुझ गोपी जन वल्लभ में विश्वास है तो काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. एक भरोसा मेरे चरणारविंद में रखना. महाप्रभु जी खड़े हुए, दंडवत किए ठाकुर जी को, और वो हनुमान घाट की एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हुए कटी तक जल हो वहां तक महाप्रभु जी गंगा जी में उतरे. 2 हाथ जोड़े, नेत्रों को नित्य लीला धाम की ओर किया और उसी क्षण एक तेज पुंज का रूप धारण करके महाप्रभु जी स्वधाम गमन करके नित्य लीला धाम में पधार गए. बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, बोलो श्री वल्लभाधीश की जय. सबकी आंखों के सामने वो परम सौंदर्य स्वरूप श्री वल्लभ का, जो सुधा रूप था, आज अग्नि रूप होकर पुनः नित्य लीला में पधार गए. वह तेज पुंज स्वरूप से श्री वल्लभ जाकर युगल स्वरूप के हृदय में बस गए. और ये दर्शन सबने अपनी आंखों से किए. इसलिए इस लीला को कहा जाता है आसुर व्यामोह लीला. आसुरी जीवों ने मोह पमाड़े हुई लीला, क्योंकि दैवी जीवों के लिए तो आज भी श्री वल्लभ यही विराज रहे हैं. वहां भगवान दास आदि की वार्ता आती है. पूछा कि सब गए और तुम महाप्रभु जी के आखिरी दर्शन करने नहीं आए. कौन गया, कहां गए? श्री वल्लभ नित्य लीला में पधार गए. अरे क्या बात करते हो, वल्लभ कहीं नहीं गए, आओ मेरे साथ. अंदर ले गए और वहां महाप्रभु जी मुकाम करते हमेशा. और किवाड़ बंद था और कहा वैष्णव ने कि खोलो, और जहां खोला देखा तो महाप्रभु जी वहां संध्या वंदन कर रहे हैं. कहा कि दैवी जीवों के लिए महाप्रभु जी कहीं नहीं गए, वो तो सदा विराज. ये मेरे वैष्णव के प्रत्येक हृदय वो एक एक महाप्रभु जी की बैठक जी है. दरेक वल्लभियों ना हृदय में श्री वल्लभ विराज क्या नहीं. जब पूछा कि आप प्रगट रूप से न हो तो आपनो अनुभव अपने कई रीते थाय, तो कहूं आटला स्वरूपे भूतल पर હું સદા વિરાજીશ. મારી બેઠક સ્વરૂપે, ગ્રંથ સ્વરૂપે, મારા વંશ સ્વરૂપે, પાદુકાજી સ્વરૂપે, માલા સ્વરૂપે
આવા અનેક સ્વરૂપ બતાવ્યા. આ સ્વરૂપે હું સદાય ભૂતલ પર છું. આમાંથી કોઈ એક સ્વરૂપનો પણ જીવ આશ્રય કરશે ને તો એને સાક્ષાત મારો અનુભવ થશે. શ્રી પ્રભુ પધાર્યા. ગોપીનાથજીના માથે શ્રીનાથજીની સેવા બિરાજી. ગોપીનાથજી પરદેશ કરીને પધાર્યા. જે કાંઈ પણ હતું બધું જ શ્રીનાથજીને સમર્પિત કર્યું. શ્રીનાથજીનો બધો જ વૈભવ વધાર્યો. ગોપીનાથજી લીલામાં પધાર્યા. એમના લાલજી પુરુષોત્તમજી એ પણ અલ્પાયુમાં લીલામાં પધાર્યા. અને હવે શ્રીનાથજીની સેવા શ્રી ગુસાઈજીના માથે બિરાજી. અને ગુસાઈજીએ જે શ્રીજીને લાલ લડાવ્યા, કારણ કે શ્રીનાથજી અને ગુસાઈજીનો જે પ્રેમ છે. ગુસાઈજી બિરાજે ગોકુલમાં અને અહીંયા નવનીત પ્રિયાજીની બધી સેવા પહોંચી રાજભોગ આદિની, અને પછી રોજ પધારે છતીપુરા. અને શ્રીનાથજીને ત્યાં જઈને શૃંગાર કરે, ભોગ ધરે, પણ બધું ગોકુલથી સાથે પધરાવી જાય. વલ્લભાખ્યાનના 7મા આખ્યાનમાં ગોપાલદાસજી અદ્ભુત વર્ણન કરે છે. આપ સેવા કરી શીખવે શ્રી હરિ, ભક્તિ પક્ષ વૈભવ સુદ્રઢ કીધો. આપની લીલા વદન પોતે કહી, ઉચ્ચાર આનંદ તે અધિક દીધો. રોજ પધારે ગોકુલમાં. ઠાકોરજીના શૃંગાર, ઠાકોરજીના વસ્ત્ર, પ્રભુને ધરવાની કેટલીક વિશેષ સામગ્રીઓ, આ બધું જ લઈ અને અહીંયા નવનીતલાલની સેવા પહોંચી અને પોતાનું અશ્વ તૈયાર હોય તુરંત પધારી જાય, તુરંત અશ્વ પર બિરાજે. કંગર શ્રીનાથજી બાબા પ્રતીક્ષા કરતા હોય, મંગળા બીજાના હાથે કરાવું પણ શૃંગાર તો ગુસાઈજી કરે તો જ હું ધારણ કરું. અને અહીંયા ગુસાઈજી પણ તત્પર છે, ક્યારે શ્રીનાથજી બાબા પાસે પહોંચી જાઉં. અને અહીંયા ગોપાલદાસ વર્ણન કરે. ઘોષથી વેગે પાઉં ધારિયા ગીરી, શ્રી ગિરિરાજ ધરણો તાપ હરવા. ફૂલ ફેરે ભર્યા વસનવા ભર્યા વસન વાઘાતણા. ફૂલની માળાઓ ધરી લીધી, વસન આજે ધરાવાના વસ્ત્રો સાથે લીધા અને શૃંગાર સાથે લઈ લીધા. અને હવે તુરંગ ઉપર અશ્વ ઉપર બિરાજમાન થયા અને ઘોડાની લગામ ખેંચી. તુરંગ ચાલે વાયુ વેગે ઉતાવળો, જાણે નૌકા ચાલી સિંધુ તરવા. તુરંગ ચાલે વાયુ વેગ. અને અશ્વસવારીમાં પણ નિપુણ છે ગુસાઈજી. અને જ્યાં લગામ ખેંચી અને ઘોડો પવનની સાથે વાતો કરતો કરતો ભાગે છે. પણ ઉપમા કેવી ગોપાલદાસ આપે, જાણે નૌકા ચાલી સિંધુ તરવા. એક નાનકડી નૌકા હોય અને મોટો મહાસાગર હોય અને પાર કરવાનો હોય ત્યારે નાવિકને એમ થાય કે આ તો ક્યારે પૂરું થશે, ક્યારે આનો અંત જ નથી. એમ શ્રીજીને મળવાની એક એક ક્ષણ ગુસાઈજીને યુગ જેવી લાગે છે. એમ લાગે કે આ હોડીથી આ આખો સાગર પાર કેમ કરવો, ક્યારે જતીપુરા આવશે, ક્યારે શ્રીજી મળશે. એક એક ક્ષણ યુગ જેવી લાગે. દિવસ કાઢનો વિરહતે યુગ સમો, નિરાંજન મિશેરુ હૃદય ધરવા. જીવને કૃત્ય નૃત્ય પ્રતિક્ષણુ ક્ષણુ, શ્રી વિઠ્ઠલનાથે ઉચ્ચર
લીલા કરે ભજન રૂપ બેઉ એક તે ભિન્ન થઈ વિસ્તરે, આપ સેવા કરી શીખવે શ્રી હરિ, જન શિક્ષા કૃતે કૃષ્ણ ભક્તિ. બંને એક જ રૂપ છે, પણ આચાર્ય સ્વરૂપે શ્રીજીને કેમ લાલ લડાવવા એ શીખવવા માટે ગુસાઈજી પધાર્યા છે. અને દ્રષ્ટિ તો શ્રીનાથજીના મંદિર તરફ છે, અને જ્યાં ગિરિરાજજી બધા દર્શન થયા, અશ્વ પરથી નીચે ઉતરી ફલાંગો ભરતા ભરતા ગુસાઈજી ઉતાવળે ઉતાવળે મંદિરમાં પધાર્યા. રૂપ બેઉ એક તે ભિન્ન થઈ વિસરે, વિવિધ લીલા કરે ભજન સારે, વિવિધ વચનાવલી નયન સેને કહી, સંજ્ઞા સૂચવે નિશિ વિહાર, વિવિધ મુક્તાવલી પાઠ સૂત્રે કરી, કલસરી શોભિતા કરે શૃંગાર. અને વિવિધ વચનાવલી નયન સૈને કરી, અને ઈશારામાં શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રીનાથજી બાબાએ વાતો કરી. એટલે કે રાત્રિના સઘન કંદરાઓમાં જે લીલા થઈ હતી, અને ગુસાઈજી તો પોતે ચંદ્રાવલીજી સ્વરૂપ છે, એટલે કેવળ નેત્રોના સંકેતથી એ માધુર્ય યુક્ત વાર્તાલાપ થયો છે. અને હવે શ્રીનાથજી બાબા પ્રતીક્ષા કરતા હતા, અને ગુસાઈજી પધાર્યા, અને ઘરથી પાટ સૂત્રે કરી અને રેશમની દોરીમાં પરોવીને જે માળાઓ સિદ્ધ કરી હતી, એ એક ને કંઠે ધરાવતા ધરાવતા શ્રીનાથજી બાબા પ્રસન્નતામાં બિરાજે છે, અને ગુસાઈજી આપના શૃંગાર કરી રહ્યા છે. વિવિધ કુસુમાવલી ગ્રથિત હાથે કરી, એક મેકને કંઠે आरोपे हार. सभी माला जी धराने के बाद पुष्प की माला गुसाई जी ने अपने श्रीहस्त से सिद्ध की है, और वह माला ठाकुर जी को धरा रहे. पर यहाँ गोपाल दास ने कहा एक एक ने कंठे आरोपे हार, बहुत सारी माला एक एक को धरा रहे हैं. और दूसरा अर्थ पाठांतर भेद ये भी है कि एक में एक ने कंठे आरोपे हार, मतलब गुसाई जी ने जब माला अपनी पोटली में से निकाल कर श्री जी को धराई, वहीं श्री जी का जो दक्षिण हस्त है मुष्टिक वाला श्रीनाथ जी बाबा ने लेकर खोला, तो वहां एक दूसरी पुष्प की माला थी. जहां गुसाई जी ने धराई, उसी समय श्रीनाथ जी ने माला लेकर गुसाई जी के कंठ में धरा. विविध मेवा भोग मधुर मिष्टान रस, रसमस्यार्पे बहु प्रकार. અંસકડી સકડી લીલા મેવા અનેક પ્રકારની વિવિધ પ્રકારની સામગ્રીઓ સિદ્ધ કરી છે, અને એક એક ધરતા જાય. અરે બાબા આપકો ये बड़ी प्रिय है, ये पहले आरोग्यो, अरे बाबा ये आपको अधिक प्रिय है, ये आरोग्यो. અને આમ અનેક વિવિધ પ્રકારની સામગ્રી શ્રીનાથજી બાબાને ધરી છે. શ્રીનાથજી બાબા પ્રેમથી આરોગે છે. અને હવે આ નવસરનો સમય થયો. આજ્ઞા માંગવા માટે ગુસાઈજી આવ્યા કે બાબા अब मैं गोकुल हो आऊं. श्रीनाथ जी बाबा कहे थोड़ी देर काका जी मेरे साथ विराजो, बाद में आम पधारियो. आम करी કરીને ગુસાઈજી ને રોકે, કારણ કે સાતે લાલજી ગુસાઈજી ને કાકાજી કહીને બોલાવતા, તો શ્રીનાથજી બાબા પણ ગુસાઈજી ને કાકાજી કહે. काका जी थोड़ी देर मेरे साथ विराजो, काका जी थोड़ी देर मेरे पास विराजो. ऐसे कर करके रोके. कहवे लगे बाबा वहां नवनीत लाल मेरी प्रतीक्षा करते હોય. આપણને એમ થાય કે નવનીત લાલને અહીંયા પધરાવીને જતીપુરા પધરાવીને કેમ ન રહ્યા? કારણ ભાવ એ છે, પુષ્ટિ માર્ગ ફલાત્મક છે, એટલે સંયોગ અને વિપ્રયોગ બંને રસનો અનુભવ. એટલે નવનીત પ્રિયાજીની સેવા જ્યારે ગુસાઈજી કરતા હોય ત્યારે શ્રીજીનો વિપ્રયોગ કરે, અને શ્રીજીની સેવા કરે ત્યારે નવનીત લાલનો વિપ્રયોગ કરે. એમ સંયોગ અને વિપ્રયોગ બંને રસનો અનુભવ ગુસાઈજી પ્રભુચરણ કરે. અને હવે જવાનો સમય થયો. શ્રીનાથજી બાબા मंदिर थी बाहर निकली. काका जी कल जल्दी पधारियो. हाँ बाबा जल्दी आऊंगो. सीढ़ी उतरता जाए गिरिराज जी नीचे. जरूखा पर आवीने श्रीनाथ जी बाबा गुसाई जी ने टगर टगर जोता रहे. फरी क्यारे गुसाई जी पधारशे, क्यारे मने लाल लड़ावशे, क्यारे मारा श्रृंगार धरशे.
આ જ્યારે પ્રેમ ગુસાઈજીને શ્રીજીનો જોયો ત્યારે ભગવદીઓએ કહ્યું કે ઘણા પ્રેમના પ્રમાણો જોયા, ઘણા ઉદાહરણો જોયા, પણ આ વિશ્વમાં શ્રીજી અને ગુસાઈજી જેવો પ્રેમ તો ક્યાંય જોયો નહીં. એસી પ્રીત કભુ નહીં દેખી. ऐसी प्रीत कबहू नहीं देखी, ऐसी प्रीत कबहू नहीं देखी. यशोमती सुत श्री वल्लभ सुत जैसी शेष जातन लेखी, ऐसी प्रीत कहूँ नहीं देखी. नंदसुत और वल्लभ सुत, उनका जो प्रेम है ऐसा प्रेम तो विश्व में कहीं नहीं देखा. अरे शेष जी भी अपनी हजारों फणाओं से प्रभु के गुणगान करते हैं, पर ये प्रेम का वर्णन नहीं कर पाते. ऐसा प्रेम है. आज्ञा मांगे चले श्री गोकुल, आज्ञा मांगे चले श्री गोकुल, फिर जाकर झरोखन देखी. सुनियत कथा जलद चातक की, सुनियत कथा जलद चातक की, कुमुदिनी चंद्र चकोर विषेखी, ऐसी प्रीत कहूँ नहीं दे. આવો પ્રેમ તો દુનિયામાં ક્યાંય નથી. કેવી જેવી ચાતક પક્ષીનો પ્રેમ. એકવાર ચાતકને એમ કહ્યું કે અમે તો અમારી અનન્યતા નિભાવી કે સ્વાતિ બિંદુ સિવાય કોઈ ગ્રહણ नहीं करो, पर कौन जाने हमारे वंशज हमारी अनन्यता को निभाएंगे कि नहीं. लाओ थोड़े पाठ पढ़ाता हूं मेरे बच्चे को, सिखाऊं कुछ. बच्चे को बुलाया चातक पक्षी ने और कहा बेटा पीना तो स्वाति बिंदु पीना, वरना कुछ मत पीना और कोई जल मत पीना. बच्चे ने कहा आज आपने कहा तो पता चला कि स्वाति बिंदु के अलावा और कोई जल भी होता है. मैं तो जल केवल स्वाति बिंदु में गिरे उसे ही मान. चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर ताप करता है, कैसे मिलूं मेरे प्रियतम को. आकाश में कहीं ऊपर है, मैं जमीन में हूं. तो कहवाए कि चकोर पक्षी जन बढ़ता अंगारा खाए, बलते हुए अंगारे खाता है चकोर पक्षी. किसी ने पूछा क्यों खा रहे हो? प्रियतम को मिलने के लिए. अरे ये खाने से कैसे मिल जाएगा? कि अरे जो मैं अंगारे खाऊंगा तो मैं खुद जलकर भस्म हो जाऊंगा, राख बन जाऊंगा. तो राख बनने से क्या होगा? तो कि राख बन जाऊंगा तो महादेव जी लेंगे मुझे और अपने कपाल पर लगाएंगे, क्योंकि उनके मस्तक पर मेरा प्रियतम बसता है, तो उससे मुलाकात मेरी हो जाएगी. ऐसा प्रेम गुसाई जी और श्रीनाथ जी का. इनको कियो सबे जिया भावत, करत श्रृंगार विचित्र विषेखी. गोविंद गोवर्धन पेमागत, गोविंद गोवर्धन पेमागत, बिछुरो पल छीन अर्धना मेखी, ऐसी प्रीत कहूँ नहीं दे. गोविंद स्वामी जયારે આ દર્શન કર્યા, गोविंद स्वामी ने जब ये दर्शन किए कि श्री जी और गुसाई जी एक क्षण अलग नहीं रह सकते.
श्री जी के बिना गुसाई जी को नहीं अच्छा लगता और गुसाई जी के बिना श्री जी को नहीं अच्छा लगता। और ये दर्शन कर कर प्रेम कर कहा, हे गिरिराज बाबा, सब आकर तुझसे कुछ न कुछ मांगते हैं, मैं तुझसे यही मांगता हूं कि कभी भी गुसाई जी और श्री जी का बिछड़न न हो, हमेशा साथ में रहे। इतनी ही मैं कृपा आपसे मांगता हूं गिरिराज बाबा, ऐसी कृपा करो कि श्री जी और गुसाई जी हमेशा साथ में। ऐसा भाव श्रीनाथ जी और गुसाई जी का, ऐसा प्रेम, अनेक विध लीलाएं, अनेक विध प्रकार का वर्णन है। जब आगे श्रीनाथ जी के चरित्र में अनेक विध चरित्र आते हैं। माधवानंद जी श्रीनाथ जी की सेवा में रहे तो सही, पर मर्यादा भक्त हैं, पुष्टि भक्त तो है नहीं। और उनको मुकुट काचनी में बड़ी आसक्ति है, मुकुट के श्रृंगार। और दूसरी सेवा अच्छी लगती है चंदन धराने की। दक्षिण के हैं तो आसक्ति वहां पे रहती चंदन धराने में। એટલે રોજ સવાર પડે એટલે મુગટનો શ્રૃંગાર કાઢે અને ચંદન ઘસી ઘસીને ભેગું કરે. અને હવે શ્રીજી કંટાળ્યા મુગટથી અને ચંદનથી. रोज देखो श्रृंगार में वही मुगट और वही चंदन. जब देखो 12 महीना न ठंडी देखते हैं न गर्मी देखते हैं. रोज मुगट धराओ और चंदन धराओ, मुगट धराओ चंदन धराओ. श्री जी ने कहा माधवानंद जी आपकी सेवा हो चुकी है. पर श्री जी तो बड़े चतुर हैं. जो भगवान कृपाए करे ने भक्तों दिले न तोड़े અને પોતાનું કાર્ય કરી લે. प्रभु ने सोचा जो मैं मना करूंगा तो उनका मन टूट जाएगा. उनको बड़ी आसक्ति और सही भाव से करते, पर मर्यादा भक्त है तो जैसा भक्त होगा वैसे ही विचार होंगे. उनको पुष्टि भाव कहां आएगा, उनका अधिकार ही इतना. युक्ति करी श्रीनाथ जी बाबा ने. करे माधवानंद जी आप जब मुगट धराते हो तो इतना आनंद आता है, इतना मुझे प्रिय लगता है कि आप रोज मुगट निकाल कर और मेरे मस्तक पर धराते हो. मानो रोज यूं लगता है कि आप मेरा राज तिलक कर रहे हो. और पसंद हो गए माधवानंद जी. और उसमें भी मुगट धराकर जब आप चंदन धराते हो, वाह, जो सुख मुझे मिलता है, जो आनंद आता है, जो आनंद आता है. कितने प्रेम से रोज घोंटते हो आप चंदन को, कितना परिश्रम लगता है. उसमें सब सुंदर पदार्थ मिलाते हो और रोज मेरे श्रीअंग पर मलते हो, धराते हो, तो इतना मुझे आनंद आता है. पर आप चंदन बड़ा सुंदर बनाते, पर यहां चंदन अच्छा मिलता नहीं. ऐसा करो माधवानंद जी, चंदन धराना ही है तो मलियागिरी पर्वत पे जाओ दक्षिण में. वहां बड़े सुंदर चंदन के वृक्ष हैं और वहां से चंदन के पेड़ काटो, फिर उसको घिसो और फिर मुझे धराओ, तो फिर क्या आनंद आए. और वो भी प्रसन्न हो गए. वहां हाँ बाबा चंदन तो अब अभी मैं जाता हूं. तुरंत सामान तैयार करो. निकला दक्षिण तरफ. ठाकुर जी के हास હવે આ ચંદન થી છુટકારો મળ્યો. आए दक्षिण में और वहां श्रीनाथ जी बाबा ने दर्शन दिए उनको और कहा माधवानंद जी आपने बड़े प्रेम से मेरी सेवा की, अब आपको यहां आने की आवश्यकता नहीं. वहां मेरा एक दूसरा स्वरूप हेम गोपाल जी के नाम से विराजता. આજે આપણે ઊટીથી જ્યારે જઈએ मैसूर तरफ ત્યારે हेम गोपाल जी नो मंदिर ત્યાં આવે છે. वहाँ महाप्रभु जी के गुप्त बैठक जी हैं और वहाँ हेम गोपाल जी विराजते हैं. आप उनकी सेवा करो क्योंकि मलियागिरी पर्वत पे विराजते हैं और उनको चंदन बड़ा प्रिय है. और आपका भी मनोरथ चंदन का रहता है. रोज घिसो रोज धराओ, रोज घिसो रोज धराओ, और वही मैं आपको सब सुख दूंगा. प्रसन्न हो गए माधवानंद जी. ठाकुर जी ने कृपा की और फिर वहीं हेम गोपाल जी के मंदिर में सेवा में रह गए. बड़ा सुंदर स्वरूप है. भगवत कृपा से कोयम्बतूर से ही हम लोग गए थे दर्शन करने हेम गोपाल जी का. इतना सुंदर श्याम स्वरूप विराजता है ठाकुर जी. तो माधवानंद जी तो पधारे. अब सेवा किसको सौंपनी. कृष्णदास अधिकारी हैं, बंगाली सेवा करते थे, पर आसक्ति कहीं और थी. अव्यवस्थाएं फैली हुई थी. कृष्णदास अधिकारी ने व्यवस्थाएं खड़ी की, सबको निकाला. व्यवस्था सुचारू रूप से चले ठाकुर जी की, ऐसा सब प्रकार किया. पधारे गुसाई जी, अब ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा. और भीड़ के बीच में से रामदास जी बाहर आए. श्री जी की कृपा,
और महाप्रभु जी की पूर्व में आज्ञा हुई थी। सभी ग्रंथों का अध्ययन मुझे महाप्रभु जी ने कृपा करके कराया था और कहा था प्रभु की सेवा तुम्हें मिलेगी, और हे प्रभु चरण आप कृपा करो तो मैं श्री जी की सेवा करूं। रामदास सांचौरा जी को ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हुई। अनेक विध लीलाएं आगे आई। श्री गुसाई जी अब गोकुल विराजते हैं, रोज पधारते हैं जतिपुरा श्री जी की सेवा में। छीतू चौबे मथुरा में बड़े प्रसिद्ध, जो भी संत महात्मा आए उनको इतना परेशान करें कि गांव में टिके ही नहीं, छोड़कर व्रत छोड़कर भाग जाए। और गुसाई जी की सुवास यश की जब फैली, अरे ऐसे कोई महात्मा है, ऐसे कोई आचार्य है जो उनके पास एक बार जाता है उनका ही हो जाता है, क्या पता क्या टोना मेना करते हैं। छीतू ने कहा सब पर मोह कर सकते हैं, मैं जाकर परीक्षा करूंगा, मुझ पे करके बताएं तब मानो। टोली थी, सरखे सब युवान इकट्ठे हुए थे, क्या करें, चलो परीक्षा करते। खोटो नारियल ने खोटो रुपयो लईने गया। જોઈએ છે ખબર પડે છે કે નહીં? એકવાર મૂકીને આવીશું પછી એમની મશ્કરી કરીશું, જો ખોટું આપીને આવે તોય ખબર પડતી નથી, એ શું વિદ્યાને જાણતા હશે। द्वार पर आकर खड़े हैं गुसाई जी, अपनी बैठक में गादी तकिया पर विराजे हैं, आसपास वैष्णव बैठे हैं, भगवत चर्चा हो रही है। और द्वार पर खड़े हुए छित्तू को देखा और गुसाई जी बोले, अरे चित स्वामी आओ अंदर। चौंक गए, अरे सब छीतू छीतू कहते हैं, इनको मेरा असली नाम कहां से पता चल गया? એટલે જે આજુબાજુ 4-5 હતા ને તો એ સેકન્ડે ભાગી ગયા, કારણ કે જે નામ ઓળખતો હશે એને અમારા કામની ખબર હશે, जो नाम जानता है वो काम भी जानता होगा, वही भग गए। चित स्वामी अवाक होकर खड़े हो गए, अरे मैं तो पहली बार आया और मेरा नाम तो किसी को गांव में पता नहीं, इनको मेरा नाम कैसे पता चला? ना ना, इनसे मोहित नहीं होना, किसी ने बता दिया होगा, अपन तो जो करने आए वो काम करो। खोटा नारियल और खोटा रुपया लेकर गए। गुसाई जी ने कहा आओ चित स्वामी बैठो। बैठ गए। हुआ धरूं के नहीं, धरूं के नहीं, धरूं के नहीं, इतने में गुसाई जी ने कहा चित स्वामी हमारी जो भेंट लाए हो वो तो दो। अरे जिसको पता है कि भेंट लाया तो उसको वो भी पता होगा कि कैसी लाया हो। घबराते घबराते नारियल लिया तो सही, गुसाई जी ने हाथ में लिया और पछाड़ा और रस की धारा उसमें से बह गई। और चित स्वामी को लगा जो खोटे को सच्चा करने वाला गुरु आज मुझे मिल चुका है। आया था तो खोटा था, स्पर्श होते ही सच्चा हो गया। ये पारसमणि मुझे मिल गया। और रुपया लेकर बाजार में चलाया, प्रभु की सेवा में अंगीकार कराई सामग्री, और अवाक होकर चित स्वामी को हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। और मुख में से पद निकला, भई अब गिरधर सो पहचान। भई अब गिरिधर सो पहचान, भई अब गिरिधर सो पहचान। कपट रूप धर छल में आयो, कपट रूप धर छल में आयो। पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान। गिरिधर सो पहचान, भई अब गिरिधर सो पहचान। कपट रूप धर छलवे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान। मैं तो छलने आया था, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। मुझसे अपराध हो गया, पर मेरा सौभाग्य है कि सही जगह आ गया। गान करते हुए छोटो बड़ो कछु नहीं समझो, छोटो बड़ो कछु नहीं समझो। छाए रहो अज्ञान, छाए रहो अज्ञान। चित स्वामी
चित स्वामी देखत अपनाए, दृष्टि पड़ते ही स्वीकार ली, अर्थ सकड़ तेनो सीधो, लीला माहे ताणी ले ली। अपना जानकर खेच लिया। જરૂર નથી કે માથે હાથ રાખે ત્યારે જ આશીર્વાદ મળે. અરે દ્રષ્ટિ પડી જાય ને તોય આપણા સૌભાગ્ય ખીલી જાય. પુષ્ટિ માર્ગ में तो दृष्टि मात्र से आशीर्वाद. देखत अपनायो श्री विठ्ठल कृपा निधान. ऐसे गुसाई जी कृपा निधान. चित स्वामी पर ऐसी कृपा गुसाई जी ने कही. नवनीत लाल के पलना झुलाते हुए गुसाई जी के दर्शन हुए. यूं लगा मानो झूलने वाले कभी ठाकुर जी हैं, कभी झुलाने वाले ठाकुर जी हैं, कभी झूलने वाले गुसाई जी हैं, कभी झुलाने वाले गुसाई जी. एक रूप करके जाना यही तेही तेही एही कछु न संदेह. और ऐसा अभेदत्व प्रकट हो जाए, यही तो अद्वैत है. पुष्टि भक्ति का यही अद्वैत है. दो है तब भेद है. जब एक करके जानोगे तो दूसरा रहेगा ही नहीं. और इस प्रकार के दर्शन चित स्वामी को हुए. ऐसी कृपा गुसाई जी ने उन पर की. प्रभु के एक और सखा हुए, और वो तो श्री जी के भी सखा हैं, और उनका नाम है गोविंद स्वामी. ठाकुर जी ने उनको साख्य भाव का दान दिया. साख्य भक्ति कराए नहीं, ठाकुर जी एनु दान आपे. આપણે કઈ ફ્રેન્ડશિપ બેલ્ટ ઠાકોરજીને બાંધીને કહી દી આજ તું મારો ફ્રેન્ડ, એમ ફ્રેન્ડ ન થવાય. ભગવાનનો મિત્ર બનવા માટેની ક્વોલિટીઓ આપી છે. कैसी लक्षण हो तब प्रभु का मित्र हुआ जाता है. और मित्रता प्रभु दान करते. जीव को तो दास भावी पकड़ रखना चाहिए. पर ये गोविंद स्वामी पर ऐसी कृपा गुसाई जी प्रभु चरण की हुई कि ठाकुर जी भी डर गए उन पर. तो पहले तो स्वामी थे गोविंद स्वामी, समझ आई तो शरण में आ गए कि स्वामित्व में आनंद नहीं है, आनंद तो दासत्व में है. बस इतनी समझ भली, ये समझ आ जाए. मीन रहत जल आसरे निकसत ही मर जाए, त्यों श्री विठ्ठल नाथ के चरण कमल चितलाए. जैसे मछली जल के बिना तड़पती रहती है, जी नहीं पाती, ऐसी आसक्ति गुसाई जी के चरणों में हो तो जीव कृतार्थ हो जाए. गुसाई जी के शरण में आए, स्वामित्व गया. इसलिए प्रसंगों में आता है कि उनके गांव में कोई व्यक्ति पुराना उनका शिष्य ढूंढ रहा है कि गोविंद स्वामी कहां रहते हैं. અને શોધતા શોધતા સામેથી ગોવિંદ સ્વામી જ મળ્યા, પણ જોયા નતા, ખાલી સાંભળ્યું હતું ને મળવા આવેલા, शिष्य થવા આવેલા. गोविंद स्वामी से पूछा उसने कि गोविंद स्वामी को देखा है क्या, कहां रहते हैं. गोविंद स्वामी ने कहा कि तूने आने में बड़ी देर कर दी. गोविंद स्वामी तो कब के मर गए. बड़ा दुख हुआ कि मैं इतने दूर से आया, उनको मिलने, उनकी मृत्यु हो गई. सोचा कि चलो आया ही हूं तो घर में जाकर थोड़ा अफसोस तो अभिव्यक्त कर दूं, कोई ना कोई तो घर में होगा. ढूंढते हुए आए, दरवाजा खटखटाया, खोला तो देखा तो अंदर गोविंद स्वामी खड़े. अरे आप कौन, आप तो जीवित हैं और आप कह रहे थे कि मर गए गोविंद स्वामी. गोविंद स्वामी कहा अभी भी मैं कह रहा हूं गोविंद स्वामी तो मर गए, पर आप हो तो सही. कहा कि गोविंद स्वामी तो जब से ब्रह्म संबंध लिया तब से गोविंद स्वामी तो मर चुके, अब तो गोविंद दास आपको मिल रहा है. अब तो प्रभु के दास आपसे मिल रहे हैं. स्वामी तो गया. और ऐसा प्रेम कि एक एक बेटी आई फिर भी बात नहीं कर पाती. कहा पिताजी बोलो तो सही. कि अरे बेटा मन एक था, वो ठाकुर जी को दे दिया, दूसरा होता तो जरूर तुझ में लगाता. एक था तो वो ले गया श्याम सुंदर. और ऐसे साख्य भाव का दान ठाकुर जी ने दिया. रोज प्रभु उनको खेलने ले जाते. वार्ता प्रसंगों में तो कितने सुंदर प्रसंग गोविंद स्वामी के श्री जी के साथ के आते. ये श्री जी का चरित्र है. रोज खेलने ले जाए, पर रमवा लई जाए नो वांधो नहीं, પોતે દાવ લઈ લે અને પછી ગોવિંદ સ્વામીનો વારો આવે એટલે ભાગતા ભાગતા નિજ મંદિરમાં ઘૂસી જાય. અને પેલા પાછા પાછળ દોડતા દોડતા આવે, બધા રોકી દે, નિજ મંદિર में नहीं, निज मंदिर में नहीं, भग जाए दाव लेकर. गोविंद स्वामी तो कीर्तन आदि भी गाए. ऐसे आता है खेलन में काको गुसैया. जब झगड़ा हुआ तब कीर्तन गाया कि खेलने में काय का गुसाई, वो तो समान है हमारे साथ, दाव लेके रोज भग जाता है. एक बार का प्रसंग है.
श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे हैं और सामने बैठे गोविंद स्वामी कीर्तन गा रहे हैं और एक एक माला श्रीनाथ जी बाबा इतने प्रसन्न हैं और गुसाई जी श्रृंगार करते हो। वाक्यम ओरे श्रीनाथ जी ने सुंदर श्याम स्वरूप श्री वल्लभ सुत सेवा करे श्री गोकुल भाग बांधे वालो जर कसील सुंदर वागा सार पटकाटे छे पचरंग नाने सज्या छे सोळे श्रृंगार केसरी तिलक सोहामणा नासिका विश्वाधार चिबुकनी अति कांति छे कंठे मोतीना हड़कछिए हीरनो जगमगे तेना तेज कणो नहीं पार अधर बिंब रसिक छे झड़के ते ज्योत प्रकाश बाहे बाजू बंद बेरखा हरिना कीटड़ियाड़ा के निर्ज्ञाने वळीने रघशु एनो पारण पामे शेष डाबी भुजाए गिरिवर धर्यो जमनो कटी मध्य भाग कृपा करो श्रीनाथ जी मारा हैया टाड़ा था पाए ते घुघरी वर्ण झणे मोजड़िए मोतीना कृपा करो श्रीनाथ जी बलिहारी माधव दास मांगे सदा मारू माग्यू आपो महाराज वड़ी वड़ी करू विनती अमने आपो व्रज महाराज। गुसाई जी श्रीनाथ जी बाबाના શ્રૃંગાર કરી રહ્યા સામે ગોવિંદ સ્વામી કીર્તન ગાય અને એવા આનંદમાં શ્રીનાથજી બાબાને કઈ ટીખળી सूझी, मस्करी सूझी। श्री जी को कुछ मजाक सूझा। छोटी सी कंकरी पड़ी थी पास में, ली और गोविंद स्वामी को मारी और वापस चुपचाप खड़े हो गए। गोविंद स्वामी देखे कि यहाँ है गिन के 3 जन, श्री जी, गुसाई जी और मैं। गुसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं तो मारने वाला श्री जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। वापस गाने लगे, पर हुआ कि कुछ भ्रम हुआ होगा, कहीं से आ गई होगी। वापस गाने लगे। वापस श्री जी ने कंकरी उठाई और गोविंद स्वामी को मारी। वापस ढूंढने लगे कि कहां से आए। 7 कंकरी श्री जी ने मारी અને હવે ગોવિંદ સ્વામીનો પિત્તો ગયો। એમણે કાંકરી ઉપાડીને આમ શ્રીજીને કર્યું, ડરી ગયા શ્રીનાથજી અને આ જોઈ ગયા ગુસાઈજી। અરે બાબા, આપ કેમ ડર્યા? क्या आपनो सेवक डरावे से? भाव प्रकाश में इस प्रकार से बताया गया कि श्रीनाथ जी बाबा ने 7 कंकरी मारी, मानो पूछा मेरे 7 स्वरूप हैं, तुझे किस में आ सकती है? गोविंद स्वामी ने सामने मार कर कहा, मुझे तो हे श्री जी आपके स्वरूप में आ सकती है। ये भाव प्रकाश में बताया गया। अनेक विधि लीलाएं गोविंद स्वामी के साथ। तो एक बार कई वन में खेल रहे थे गोविंद स्वामी के साथ और झाड़ की डाल पर बैठे थे ठाकुर जी, नीचे खड़े थे गोविंद स्वामी। और इतने में उत्थापन का शंखनाद हुआ और जहां हुआ शंखनाद, श्रीनाथ जी डर गए। अरे अभी मेरे उत्थापन करने मुखिया जी आ जाएंगे, मैं यहां पे हूं। भागे ठाकुर, भागे तो सही पर ठाकुर जी का पटका फंस गया।
डाल में फंस गया, ठाकुर जी ने खींचा, फट गया, टुकड़ा रह गया वहां, और फटा हुआ पटका लेकर दौड़े ठाकुर जी। और जब गुसाई जी ने देखा और टुकड़ा लेकर आए गोविंद स्वामी, अरे पटका कहां फटा? पता चला कि इस प्रकार ठाकुर जी खेल रहे थे और एकदम से शंखनाद हुआ और ठाकुर जी घबरा कर भागे। गुसाई जी ने कहा, आज से सेवा में ऐसा क्रम रखो कि शंखनाद भी 3 बार करा जाए, टकोरा भी 3 बार बजाया जाए, इसलिए प्रभु कहीं खेल रहे हो तो उतावले उतावले कर न दौड़े, उनको पहले से पता चल जाए और आराम से ठाकुर जी बना। इसलिए तब से पुष्टि मार्ग में यह क्रम हुआ कि 3 बार टकोरा करते हैं, 3 बार शंखनाद करते हैं और फिर ठाकुर जी को जगाया जाता है। અને એમ પણ ઠાકોરજીને જગાડવામાં અને પોઢાવવામાં ઉતાવળ नहीं करनी। ये 2 कार्य में कभी भी जल्दी नहीं करना। एक छोटे बच्चे को जैसे पौढ़ाते हैं, पौढ़ने के बाद भी थोड़ी देर बैठते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को भी जब पौढ़ाओ तो 2 मिनट पास में बैठो, फिर जाओ, जगाओ तो भी धीरे से ठाकुर जी को जगाओ। ये क्रम बनाया गया। गोविंद स्वामी के साथ तो अनेक अनेक प्रसंगों का वर्णन आया है। अब एक और सखा हुए ठाकुर जी के, चतुर्भुज दास। इनकी तो इतनी मजाक ठाकुर जी ने की। चतुर्भुज दास, ऐसे कहा जाता है कि जब गोविंद स्वामी रोज कुम्मन दास को लेकर ठाकुर जी रोज माखन चोरी करने जाते। आज ले गए कुम्मन को साथ में, चल कुम्मन आज वहां वो सखी के घर माखन चोरवे जावे को। चले सखान के साथ कुम्मन दास, प्रवेश कर लिया गोपी के घर में। एक सखा को घोड़ा बनाया, उल्टा किया, चढ़े ठाकुर जी ऊपर और गोविंद स्वामी कुम्मन दास से ठाकुर जी ने कहा कि तू द्वार पर खड़ा रहे, देखता रहे कोई आए तो नहीं रहा है। खड़े द्वार पर कुम्मन दास और प्रभु की लीला का दर्शन कर रहे। चढ़ तो गए प्रभु ऊपर और जहां मटकी उतारने गए इतने में प्रभु का पीतांबर सरक गया और जहां गिरने गया तो ठाकुर जी ने क्या किया, 2 भुजाएं और प्रकट की और पीतांबर को संभाल लिया। और कुम्मन दास को हुआ, प्रभु आज तो आपने बड़ी कृपा की, चतुर्भुज रूप से दर्शन मुझे दिए। और जहां ये लीला पूरी हुई, घर आए कुम्मन दास, इतने में समाचार मिले, कुम्मन दास आपके वहां बेटे का जन्म हुआ है। और वो तो चतुर्भुज लीला का दर्शन कर रहे थे, उसी लीला में मग्न थे। कुम्मन दास ने कहा, बेटा हुआ तो अच्छा हुआ, पर उसका नाम चतुर्भुज दास रखेंगे, क्योंकि आज प्रभु ने चतुर्भुज रूप से कृपा की है। ऐसे दर्शन हमको हुए। चतुर्भुज दास पर ठाकुर जी ने विशेष रूप से कृपा। खाली 40 दिन के थे, 41 दिन के, और ले गए गुसाई जी के पास, नाम निवेदन कराया और वह 41 दिन वाले चतुर्भुज दास ने पद गाया, सेवक की सुख राशि सदा श्री वल्लभ राजकुमार। विचार करो, जिसकी वाणी भी न फूटी हो, वो 41 दिन का बालक शरणागत होकर श्री गुसाई जी की बधाई गा रहा है। ऐसे चतुर्भुज दास, बड़ी कृपा गुसाई जी की चतुर्भुज दास पर रही। अनेक विध लीलाओं का वर्णन आया। गोपीनाथ दास ग्वाल थे, उन पर ठाकुर जी ने कृपा की, रोज सखाओं को लेकर जाते और सखाओं को साथ खेलने जाए तो ठीक, पर जो भी भोग धराओ ठाकुर जी के बंटा में अनवसर में, वो सभी लड़ुआओं को भरकर चले जाते, सभी लड्डुओं को ले जाए और फिर सखाएं बैठे तो सबको एक एक लड्डू दें, चलो एक 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 खाओ। यहां चर्चा हुई कि ये सब ठाकुर जी को धरा हुआ भोग जाता कहां है, कौन ले जाता है? देखो इतने लड्डू धरे थे, 8 लड्डू कहां चले गए? गोपीनाथ ग्वाल भी वहां खड़े थे और अपनी झोली में से निकाल कर बताया, कहीं ये लड्डू तो नहीं थे? अरे हाँ, यही तो है श्रीनाथ जी बाबा के। तो हम कोई नहीं ले जाते, ये श्रीनाथ जी खुद लेकर आते हैं और हम सबको बांटते हैं। तो गुसाई जी ने कहा, तो अब तो ठाकुर जी का नेग तय करना पड़ेगा कि रोज कितने भोग धरना, कैसे प्रकार से आरोगे ठाकुर जी, जिससे प्रभु भी आनंद से आरोगे और वैष्णव को भी कणिका मिले। तो सब नेक भोग बनाया गया। लच्छो गुजरी की वार्ता आई, पेठो गांव में रहती और श्रीनाथ जी बाबा रोज दही भात उसका आरोगते। उस पर इतनी कृपा की कि तेरो दही भात मुझको बड़ो भावे। और श्रीनाथ जी बाबा ऐसी कृपा करें कि रोज उसके हाथ का दही भाग आरोगे।
इस प्रकार यहां गुसाई जी प्रभुचरण ने अष्टछाप की रचना की। विक्रम संवत 1602 में कहा जाता है कि गुसाई जी अष्टयाम के दर्शन के साथ अष्टछाप की स्थापना हुई। रह गए एक भक्त, और वो है नंददास। पहले अष्टसखा में विष्णुदास छिपा की गिनती की जाती थी, पर जब नंददास शरण में आए, प्रसिद्ध उनकी भी कथा है, तुलसीदास जी के भाई हैं वैसे, पर एक स्त्री में आसक्त हो गए। ऊपर अटारी पर खड़ी हुई स्त्री में ऐसे मोहित हुए, भूखे प्यासे बैठे रहे, न जाए न कुछ हिले न समझे, बस देखा करें उसको। स्त्री पुरुष दोनों पति पत्नी गुसाई जी के सेवक थे। हुआ क्या, ये तो गांव में बदनामी हो जाएगी, चलो गुरु के सानिध्य में जाते, और ये पीछे पीछे चलने लगे। अभी आए नहीं हैं और गुसाई जी विराजे हुए। गुसाई जी ने 3 पातल की, पति पत्नी महाप्रसाद लेने विराजे, तो कहे तीसरी कौन की है? गुसाई जी ने कहा वो अभी आ रहा होगा पीछे। और नंददास आए और जहां गुसाई जी को देखा, समझ में आ गया कि सौंदर्य किसको कहते हैं। वो भौतिक सुंदरता बिसर गई, अलौकिक आत्मिक सौंदर्यता का अनुभव हुआ। और जैसे पेड़ा खा लो तो फिर दूध फीका ही लगता है, वैसे ही गुसाई जी के स्वरूप का, नवनीत लाल के स्वरूप का, और जब श्रीनाथ जी के स्वरूप का अवलोकन किया, सभी लौकिकता मिट गई। और ऐसे भक्त भगवती हुए, प्रगट रास के दर्शन नंददास जी को हुए। अनेक अनेक पद साहित्य में रूप मंजरी का भी प्रसंग और अनेक प्रकार के प्रसंग आते हैं कि नंददास कैसे भगवती हुए। तो अष्टसखा में उनका स्थान आ गया, और इस प्रकार अष्टछाप भगवती हुए। 8 समय में, एक एक समय में एक एक भोग का क्रम बनाया गया। मेवाड़ में मीराबाई की काका की बेटी, चाचे की बेटी अजब कुंवर बाई, गुसाई जी ने आकर मुकाम किया। और मुकाम तो किया, पर गुसाई जी का स्वरूप का दर्शन करते हुए अनन्य श्रद्धा गुसाई जी में जग गई। प्रभु 5 दिन विराज कर गुसाई जी पधारने लगे, आपके बिना कैसे जी पाऊंगी, आपकी कृपा इतनी हुई है, आपके बिना जीवन संभव नहीं। गुसाई जी ने अपनी पादुका दी और कहा, जब भी मेरा स्मरण करके पादुका जी का दर्शन करोगे, तुम्हें साक्षात मेरा अनुभव होगा। और गुसाई जी की ऐसी कृपा हुई कि अब तो रोज श्रीजी बाबा पधारने लगे यहां पे। जब जब गुसाई जी दर्शन दे, तब तब श्रीजी पधार जाए। और श्रीजी पधारे तो अजब कुंवरी बाई वहां चौपाट बिछा के रखते, गादी तकिया रखे हो, लीला मेवा दूध घर आदि पधरा कर रखा हो, बंटा में बीड़ी पधराई हो, अत्तर लगाकर पूरा सुगंधित वातावरण हो, और रोज श्रीजी बाबा। क्योंकि जब भक्ति में लग गई हो जब कुंवरी बाई, पिता ने कहा जो तुझे भक्ति करनी हो तो मेरे महल में तेरे लिए स्थान नहीं है, तो एक कुटिया बनाकर रहती है। ठाकुर जी रोज पधारते, प्रसंगे तो कई हैं, रोज चौपाट खेलते और रोज प्रभु जीत जाते। आज श्रीनाथ जी बाबा पधारे अजब के वहां, और आज कुछ नई लीला ठाकुर जी ने की। पासे पड़ रहे हैं और श्रीजी की एक एक गोटी मरने लगी, और जहां खेल समाप्त हुआ वहां अजब जीत गई और श्रीजी हार गए। और खेल का नियम ये, जो जीते वो मांगे और सामने वाले को उसकी इच्छा पूरी करनी। श्री जी ने कही, अजब आज तू जीत गई, मैं हार्यो, मांग, तू मांगेगी वो दूंगा। और जब श्रीनाथ जी ने यह कहा, तब जब कुंवरबाई ने श्रीनाथ जी का पटका पकड़ लिया और कहा कि आज के बाद आप यहां ही विराज जाओ। और तब श्री जी ने कही कि अजब तूने ये कहा मांग लियो, मैं रोज ब्रजसु मेवाड़ आऊं तेरे घर, पर खेल को जो नियम है वो मैं निभाऊंगा। तूने कही कि यहीं विराज जाओ, तो मैं तुमको वचन देता हूं
कि भाई हाँ विराजूंगा, पर अभी 125 साल की देर है, श्री जी ने कही, और मेरे तो को आशीर्वाद है, तू 150 साल जिएगी, और 125 साल के बाद जब व्रजवासी कहेंगे कि मैं जाऊं और ऐसी लीला मैं करूंगा, क्योंकि जहां तक गुसाई जी भूतल पर है वहां तक मैं ब्रज नहीं छोड़ूंगा। और कहा जाता है, आगे प्रसंगों में देखेंगे, 125 वर्ष के बाद ऐसी लीला हुई। आज जो आप श्रीनाथ जी को विराजे देख रहे हो, वो स्वयं अजब कुंवरी बाई का घर है। कई बार लोग बहार गाम थी आवे ना आवे ने एम के आ બધું તોડીને મોટું કેમ કરી નાખતા, મોટું કેમ નથી કરી નાખતા, મોટું કેમ કે, અરે આ બધું ભાવાત્મક અને લીલાત્મક છે। केवल लोगों की व्यवस्था के कारण ऐतिहासिक स्थानों को इस प्रकार से बदलना ये भी उचित नहीं। ये सब भावात्मक स्थान है, मणिकोठा को, कमल चौक को, निज तिवारी को, ये सब जो जो स्थाने हैं उसकी भावनाएं हैं। केवल व्यवस्था को, હવે તમે તાજમહેલમાં જાઓ ને એમ કહો કે આ થોડું નાનું પડે, તોડીને દરવાજો મોટો કરી નાખો, થાય? ના ના, એ તો હિસ્ટોરિકલ પ્લેસ છે। तो जब आप अलग अलग स्थानों को अलग अलग आदर देते हो, तो श्री जी के मंदिर को क्यों आदर नहीं? कई बार हमको लगता है कि ये सब कर डालो तो व्यवस्था ही नहीं देखनी है, मंदिर की भावना भी देखी जाती है। यहां श्रीनाथ जी ने स्वयं ने वचन दिया है कि 4 चौक को मंदिर बनायो, पर आप विराजे वालो छपर तरे। आप तो उस छपरे के नीचे विराजते हैं, क्योंकि अजब कुंवरी बाई को वचन दिया था कि इतने वर्षों के बाद मैं तेरे घर में आके मुकाम करूंगा और वर्षों तक विराजूंगा, फिर जब समय होगा तब मैं वापस ब्रज वापस पधारूंगा। पर यह भी ऐतिहासिक देखने जाओ कि ठाकुर जी वापस ब्रज पधारेंगे, पूछरी के भाग में पधारेंगे। હવે કોઈ એક સ્ટેટ વાળા બીજા સ્ટેટમાં જવા દે ભગવાન? આટલું મોટું મંદિર। પણ એ સમયે રાજ્યોના જ્યારે ભાગલા પડતા હતા ત્યારે કોઈ પુષ્ટિ માર્ગી તો હતું નહીં કે આ રાજસ્થાન ને આ યુપી ના ગુજરાત। પણ ઠાકોરજીનો ચમત્કાર જુઓ, આજે પણ ગિરિરાજજીનો પૂછરીનો ભાગ રાજસ્થાન સ્ટેટમાં જ આવે છે। એટલે પ્રભુ વ્રજમાં પધારશે તો એમને સ્ટેટ ચેન્જ નહીં કરવું પડે, કારણ કે राजकीय व्यवस्था तो जवा ना दे। पर श्रीनाथ जी ने अपनी व्यवस्था अगर हम अभी से कर ली तो वहां पुछरी के भाग में भी जाएंगे तो भी रहेंगे तो राजस्थान में। आज भी हम यात्रा में जाते हैं तो कामबन आदि जाते हैं तो बीच में राजस्थान की बॉर्डर आती है, लोगों ने याद ही रहे, कारण के टैक्स भरવો પડે ને। तो ये श्रीनाथ जी ने तो अपनी व्यवस्था कर ली है। जो ब्रज में भी पधारेंगे तो राजस्थान से बाहर नहीं पधारेंगे और ब्रजवास भी हो जाएगा। और वहां वचन दिया है, और श्रीनाथ जी बाबा कहने लगे कि अब 12 बज चुके हैं, तो समय થઈ ગયો છે। તો આજની આ પ્રસંગને વિરામ તરફ લઈ જતા આપણી કથાને આજે ખિમનોર જવાનું છે। ખિમનોરમાં હરિરાય મહાપ્રભુજીની સાથે આપણે આનંદ કરવાના છીએ।